you are doing well. In the previous class, we completed the lesson about a king. Today, we are going to begin a new chapter, Patra Ki Atmakatha, the autobiography of a letter. This lesson is about a letter talking about itself. Do you know what an autobiography is? An autobiography is a description of one's life by the same person. So, what is the difference between an autobiography and biography? An autobiography is when a person describes about his own life. A biography is when a second person describes one's life. In this lesson, a letter talks to us about its life. A letter is written by a person, then it is taken to the post office and it's delivered to the address by a postman, isn't it? We will learn about all that in this lesson. Let's begin. Dear students, let's start our lesson. पाठ 7 पत्र की आत्मकथा. Patra means letter, Atmakatha means autobiography. Autobiography of a letter. Let's read. मैं कागज के टुकड़े का बना पत्र हूँ. मैं बोल सकता हूँ, रो सकता हूँ, खिलखिलाकर हंस सकता हूँ. कोई तो मुझे पाकर अपने गले से लगा लेते हैं, लेकिन कुछ मुझे पाकर दुख का अनुभव भी करते हैं. मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं कभी कभी बहुत विवश भी हो जाता हूँ. Once again, मैं कागज के टुकड़े का बना पत्र हूँ. मैं बोल सकता हूँ, रो सकता हूँ, खिलखिलाकर हंस सकता हूँ. कोई तो मुझे पाकर अपने गले से लगा लेते हैं, लेकिन कुछ मुझे पाकर दुख का अनुभव भी करते हैं. मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं कभी कभी बहुत विवश भी हो जाता हूँ. What does it mean? मैं कागज के टुकड़े का बना पत्र हूँ. मैं, what does it mean? मैं means I. But here मैं denotes पत्र. मैं कागज के टुकड़े का बना पत्र हूँ. I am made of paper. मैं बोल सकता हूँ, रो सकता हूँ, खिलखिलाकर हंस सकता हूँ. बोलना, to tell, रोना, to cry, हंसना, to laugh. पत्र says that letter told to us, मैं बोल सकता हूँ. I speak. मैं रो सकता हूँ. I cry. खिलखिलाकर हंस सकता हूँ. And I laugh a lot. I speak, I cry, and I laugh a lot. कोई तो मुझे पाकर अपने गले से लगा लेते हैं, लेकिन कुछ मुझे पाकर दुख का अनुभव भी करते हैं. It means some people are happy when they receive me. कोई तो मुझे पाकर अपने गले से लगा लेते हैं. Some people are happy when they receive me. And कुछ मुझे पाकर दुख का अनुभव भी करते हैं. Some people are sad. When they receive me, somebody very happy and some people are sad. मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए
मैं कभी कभी बहुत विवश भी हो जाता हूँ. I cannot do anything for these people. Therefore, I also become sad at times. मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता. I cannot do anything for these people. इसलिए मैं कभी कभी बहुत विवश भी हो जाता हूँ. Therefore, I also becomes sad at times. मनुष्यों की तरह मेरे पर नहीं है, किंतु फिर भी मैं लंबी यात्रा करके उनके पास पहुंचता हूँ. संसार में जितनी मेरी प्रतीक्षा होती है, शायद ही किसी अन्य वस्तु की होती होगी. मनुष्यों की तरह मेरे पर नहीं है, किंतु फिर भी मैं लंबी यात्रा करके उनके पास पहुंचता हूँ. संसार में जितनी मेरी प्रतीक्षा होती है, शायद ही किसी अन्य वस्तु की होती होगी. It means मनुष्यों की तरह मेरे पर नहीं है. I don't have legs like humans. किंतु फिर भी मैं लंबी यात्रा करके उनके पास पहुंचता हूँ. But I travel a long distance to reach them. Isn't it? Yes, absolutely correct. मनुष्यों की तरह मेरे पर नहीं है. I don't have legs like humans. किंतु फिर भी मैं लंबी यात्रा लॉन्ग जर्नी यात्रा करके उनके पास पहुंचता हूँ. I travel a long distance to reach them. संसार में जितनी मेरी प्रतीक्षा होती है, शायद ही किसी अन्य वस्तु की होती होगी. More than anything else, perhaps people eagerly wait for me. संसार में जितनी मेरी प्रतीक्षा होती है, शायद ही किसी अन्य वस्तु की होती होगी. More than anything else, perhaps people eagerly wait for me. Yeah. संसार, world, शायद, perhaps. Once again, मनुष्यों की तरह मेरे पर नहीं है, किंतु फिर भी मैं लंबी यात्रा करके उनके पास पहुंचता हूँ. संसार में जितनी मेरी प्रतीक्षा होती है, शायद ही किसी अन्य वस्तु की होती होगी. Once again listen. I don't have legs like humans, but I travel a long distance to reach them. More than anything else, perhaps people eagerly wait for me. Okay. Those who ready for reading? Amenta. Yes. Now, all of you listen. Amanda read the lesson. Okay. You may start. चैप्टर 7 पत्र की आत्मकथा. मैं कागज के
बना पत्र हूँ। मैं बोल सकता हूँ, रो सकता हूँ, खिलखिलाकर हंस सकता हूँ। कोई कोई तो मुझे पाकर अपने गले से लगा लेते हैं, लेकिन कुछ मुझे पाकर दुख का अनुभव भी करते हैं। मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं कभी कभी बहुत विवश भी हो जाता हूँ। मनुष्यों की तरह मेरे पैर नहीं है, किंतु फिर भी मैं लंबी यात्रा करके उनके पास पहुंचता हूँ। संसार में जितनी मेरी प्रतीक्षा होती है, शायद ही किसी अन्य वस्तु की होती होगी। Okay, Amanda, you read it very well. Keep it up. Then, next paragraph. मुझे नर नारी बूढ़े जवान छोटे बड़े सब खरीद सकते हैं। मैं किसी से भेदभाव नहीं करता। All people buy me irrespective of whether they are young or old, men or women. That like. मुझे नर नारी बूढ़े जवान छोटे बड़े, नर नारी men and woman, बूढ़े जवान old men or young man, छोटे बड़े small or big, anyway all people buy me irrespective of whether they are young or old, men or women. That like. मैं किसी से भेदभाव नहीं करता। कुछ लोग तो मेरे शरीर पर सुंदर अक्षर लिखते हैं। Yeah, some people write on me with beautiful handwriting. ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मेरा शरीर गहनों से सजाया हो, लेकिन कुछ मेरे शरीर पर इतना गंदा लिखते हैं। I feel that some people decorate me. मेरा शरीर गहनों से सजाया हो। Some people take me and decorate. Yes. We also doing that like. लेकिन कुछ मेरे शरीर पर इतना गंदा लिखते हैं। Yeah. Some others make me dirty and misuse me. Letter told us, जैसे उन्होंने मेरा शरीर गहनों से सजाया हो। Some are decorate me and some purpose make me dirty and misuse. उसे बधा कर देते हैं, फिर भी मैं उनसे कुछ नहीं कहता, सब चुपचाप सहन कर लेता हूँ। उसे बधा कर देते हैं। बधा मीन्स
dirty or ugly. फिर भी मैं उनसे कुछ नहीं कहता, सब चुपचाप सहन कर लेता हूँ. I don't complain and silently suffer everything. I have no complaint. Silently suffer everything. Next stanza, next paragraph. मुझे जिसके पास भेजना होता है उस स्थान का पता मेरे ऊपरी लिफाफे पर लिखकर एक पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाता है. उनके इस आदेश को चुपचाप मानकर मैं उस स्थान की ओर चल देता हूँ. डाकिया मुझे उस बॉक्स से निकाल लेता है और डाक कर ले जाता है. पता, पता means address. लिफाफा, लिफाफा envelope. पोस्ट बॉक्स, do you see post box? Letter box. Dakia, dakia means postman. Dakia, postman. What is the Hindi word of postman? डाकिया. डाकघर, पोस्ट ऑफिस. डाकघर, पोस्ट ऑफिस. Once again, I will read. मुझे जिसके पास भेजना होता है उस स्थान का पता मेरे ऊपरी लिफाफे पर लिखकर एक पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाता है. उनके इस आदेश को चुपचाप मानकर मैं उस स्थान की ओर चल देता हूँ. डाकिया मुझे उस बॉक्स से निकाल लेता है और डाकघर ले जाता है. If you need to send me, you have to write the address on the envelope and deposit me in the post box. Okay. If you need to send me, you have to write the address on the envelope and deposit me in the post box. पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाता है. हम पत्र कहाँ डाल दिया जाता है? पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाता है. उनके इस आदेश को चुपचाप मानकर मैं उस स्थान की ओर चल देता हूँ. Based on the address, I travel to that place. उनके इस आदेश को चुपचाप मानकर, चुपचाप मीन्स साइलेंटली, मानकर मैं उस स्थान की ओर चल देता हूँ. Based on the address, I travel to that place. Next. डाकिया मुझे उस बॉक्स से निकाल लेता है और डाकघर ले जाता है. Yeah.
The postman takes me from the post box and come to the post box. डाकिया मुझे उस बॉक्स से निकाल लेता है. कौन पत्र बॉक्स से पोस्ट बॉक्स से निकाल लेता है? डाकिया. डाकिया पत्र पोस्ट बॉक्स से निकाल लेता है. Okay. Then anybody can read? Okay. Alvin Joshi, stand up and read. मुझे नर नारी बूढ़े जवान छोटे बड़े सब खरीद सकते हैं. मैं किसी से भेदभाव नहीं करता. कुछ लोग तो मेरे शरीर पर सुंदर अक्षर लिखते हैं. ऐसा लगाता है जैसे उन्होंने मेरा शरीर गहने से सजाया हो. लेकिन कुछ मेरा शरीर पर इतना गंदा लगते हैं कि उसे बदला कर देते हैं. फिर भी मैं उनसे कुछ नहीं कहता. सब चुपचाप सहन कर लेता हूँ. मुझे जिसके पास बेचना होता है उस स्थान का पता मेरे ऊपरी लिफाफे पर लिखकर एक पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाता है. उनके इस आदेश को चुपचाप मानकर मैं उस स्थान की ओर चल देता हूँ. डाकिया मुझे उस बॉक्स से निकाल देता है और डाकघर ले जाता है. डाकघर में मेरे ऊपरी लोहे की मोहर की मार से चाप पड़ती है. मैं वह भी चुपचाप सहन करता हूँ. डाकघर वाले मुझे एक थैली में डाकघर रेलवे स्टेशन ले जाते हैं. वहाँ मुझे थैली सहित गाड़ी के एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है. इसलिए मैं मेरे कई अन्य साथी भी होते हैं. हम सब अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं. गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वहां का डाकिया हमें डाकघर ले जाकर एक बार फिर वही लोहे की मोहर लगाता है और उसके बाद. Yeah, very good presentation. Alvin, you read it well? Okay. Then, next paragraph. डाकघर में मेरे ऊपर लोहे की मोहर की मार से चाप पड़ती है. मैं वह भी चुपचाप सहन करता हूँ. डाकघर वाले मुझे एक थैले में डालकर रेलवे स्टेशन ले जाते हैं. वहाँ मुझे थैले सहित गाड़ी के एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है. इस थैले में मेरे कई अन्य साथी भी होते हैं. हम सब अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं. गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वहां का
डाकिया हमें डाककर ले जाकर, एक बार फिर वही लोहे की मोहर लगाता है और उसके बाद जिस घर या स्थान का मुझ पर पता लिखा होता है वहां जाकर मुझे दे देता है। मैं वहां पहुंचकर उनसे सुख दुख की बातें करता हूं। लिसन। डाकघर में मेरे ऊपर लोहे की मोहर की मार से छाप पड़ती है। It means in the post office they put a stamp on me and applies a seal. Dakghar means post office. Mohar stamp, छाप पटना, put seal. डाकघर में मेरे ऊपर लोहे की मोहर की मार से छाप पड़ती है। In the post office they put a stamp on me and applies a seal. मैं वह भी चुपचाप सहन करता हूँ। I don't complain and silently suffer everything. I am suffering everything. डाकघर वाले मुझे एक दैले में डालकर रेलवे स्टेशन ले जाते हैं। Then they put me in a bag and take me to the railway station. थैला बैग, डालना to put. डाकघर वाले मुझे एक दैले में डालकर रेलवे स्टेशन ले जाते हैं। Then they put me in a bag and take me to the railway station. वहां मुझे थैले सहित गाड़ी के एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। वहां मुझे थैले सहित गाड़ी के एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। Then I am locked inside a train compartment. गाड़ी के डिब्बे, रेलगाड़ी के डिब्बे means रेल कंपार्टमेंट। ओके, वहां मुझे थैले सहित, थैला बैग, थैले सहित गाड़ी के एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। Then I am locked inside a train compartment. इस थैले में मेरे कई अन्य साथी भी होते हैं। हाँ, इस थैले में मेरे कई अन्य साथ भी होते हैं। Some other things also with me means parcels, couriers, something. Okay. हम सब अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। I start the journey to my destination. इस हम सब अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन। पहुंचना मीन्स टू रीच। हम सब अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। I start the journey to my destination. गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वहां का डाकिया हमें डाककर ले जाकर एक बार फिर वही लोहे की मोहर लगाता है। गंतव्य स्थान, what does it mean? We know. It means destination. पहुंचकर, पहुंचना,
to reach. Dakia, postman. Dakghar. What is the meaning of Dakghar? Post office. गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वहां का डाकिया हमें डाकघर ले जाकर एक बार फिर वही लोहे की मोहर लगाता है. From there, the postman takes me to the post office and applies a seal on me again. From there, the postman takes me to the post office and applies a seal me on again. और उसके बाद जिस घर या स्थान का मुझ पर पता लिखा होता है. और उसके बाद जिस घर या स्थान का मुझ पर पता लिखा होता है. वहां जाकर मुझे दे देता है. मैं वहां पहुंचकर उनसे सुख दुख की बातें करता हूं. Where I am supposed to go and delivers me there. I reach there and convey them the news of happiness and sorrow. वहां पहुंचकर उनसे सुख दुख की बातें करता हूं. I reach there and convey them the news of happiness and sorrow. Got it? गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वहां का डाकिया हमें डाकघर ले जाकर एक बार फिर वही लोहे की मोहर लगाता है. और उसके बाद जिस घर या स्थान का मुझ पर पता लिखा होता है वहां जाकर मुझे दे देता है. मैं वहां पहुंचकर उनसे सुख दुख की बातें करता हूं. It means the postman takes me to the post office and applies a seal on me again. Then the postman takes me to the home where I am supposed to go and delivers me there. I reach there and convey them the news of happiness and sorrow. Isn't it? Yes. मैं वहां पहुंचकर उनसे सुख दुख की बातें करता हूं. I reach there and convey them the news of happiness and sorrow. Okay. Anybody can ready to read? Yes. Devika? Ready for reading? Okay, start. त्याग में मेरे ऊपर लोहे की मोहर की मार से छाप पड़ती है. मैं वह भी चुपचाप सहन खाता हूँ. टागर वाले मुझे एक दायले में टागर रेलवे स्टेशन ले जाते हैं. वहाँ मुझे दायले सहित गाड़ी के एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है. इस दायले में मेरे कई अन्य साथी भी होते हैं. हम सब अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं. गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वहां का डाकिया हमें टागर ले जाकर एक बार
फिर वही लोहे की मोहर लगाते हैं और उसके बाद जिस घर या स्थान का मुझ पर पता लिखा होता है वह जाकर मुझे दे देता है। मैं वहां पहुंचकर उनसे सुख दुख की बातें करता हूँ। Dear students, I hope you understood today's lesson. Today we learned a few things like how a letter is sent. We learned about the post office, the postman, etc. As today's homework, you have to read the lesson and also write the meanings once in the notebook and twice in the copybook. You also have to read the lesson and send a recording of your reading. Please submit this homework by tomorrow. There will be a class test tomorrow. That's the end of the class. See you all next week. Thank you.